पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पहला टेस्ट मैच, तीसरे रोज का इख्तिताम। 556 रन पाकिस्तान ने बनाए थे, 60 रन की ट्रेल रह गई है और इंग्लैंड ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान को अब यहां से भागने का मौका नहीं देगा। जी माही। Shahzad, day 3 of the first test from Multan, a typical batting wicket. We were, preempting this that England is going to take on the Pakistani bowlers. The only saving grace for us could have been good line and length by our bowlers. Were we able to do that today? Were our bowlers good enough? Is their fitness up to the mark? We've got our expert in the studio with us today. So let's have a look at the match summary and then we'll throw our questions at our expert. जी, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स के हवाले से ही बात करते हैं। तकरीबन उन्होंने हमसे काफी कम ओवर्स में 492 रन बना दिए 3 विकेटों के नुकसान पर। रूट obviously still on the crease, 176 not out of 277. Harry Brooks still on the crease, 141 not out. Duckett 84, 75 and Colley 78. Shahzad, where we're speaking about Root's 176, Root has now surpassed Sir Alistair Cook's record of the highest test runs in test matches. So congratulations to Joe Root. Yeah. And not just that, he's on number 6 in most centuries in test as well now. Yeah, so imagine. Wow. So the most run getter for England. And then on number 6, we got the likes of Sachin Tendulkar, Sangakkara, and all of those people. So Joe Root, first of all, let's get started with him. He's a modern day great batsman, I think. Typical Englishman. A great character and a great guy at the same time. He laughs, he has fun, and he plays the game that, जो requirement है today's cricket की, उस तरह खेलता है. I mean, good strike rate, amazing strike rate, not good strike, amazing strike rate. I mean, he knows, he's a proper batsman with a flamboyant kind of attitude. So, I think he was brilliant. ये proper batsman है, ये proper Englishman batsman जिसको आप देख रहे हैं. True. And he's beautiful to watch. It's just amazing. It's the stance, the way that he makes his strokes, the way that he plays, the follow on. I mean, everything kind of settles in. I mean, it's like a treat to watch. It's like an ice cream for a kid. That's exactly how it is to look at Joe Root. और शुएब भाई, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कल आप आए, आपने इनिंग्स का आगाज किया और उसके बाद आप आज पूरा दिन खेले. That's something which is of most important जो एस्पेक्ट है इनके बल्लेबाजी का, कि आज पूरा दिन ये खड़े रहे. कहीं कोई डिहाइड्रेशन लगी, हल्का सा लगा के निकल आया, या हैमस्ट्रिंग का मसला था, बट ही पुल्ड क्रैम्पिंग एंड में थोड़ा सा था. इवन दो दे हैड एन ऑप्शन कि वो रिटायर्ड हर्ट हो सकते थे, बट ही डिडंट गिव अप. दैट इज वेयर देयर करेज एंड देयर विलिंगनेस टू प्ले कम्स इन. मैंने आपसे कहा था पहले दिन भी कहा था 250 करेंगे, बिल्कुल, ये 250 करेंगे, तो वो इस तरफ जा रहे हैं. ये मैंने आपसे कहा था ना, बिल्कुल मौजूद है आपके पास जी. तो ये 250 करेंगे. Again, I mean, we're talking about the modern great, which is Joe Root. I think it's been amazing. He's been amazing for the last 10 years. Simple as. And for him to just go out there and score some runs, nothing amazes me. Exactly. यहीं से जरा कंटिन्यू करता हूँ. Obviously he's not on the crease now. मैं बेन डकेट के हवाले से ही बात करना चाहता हूँ. 75 गेंदों पे उन्होंने 84 रन बनाए और एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ खेला. बेसबॉल की जो डेफिनेशन है वो बेन डकेट की शक्ल में नजर आई. अपनी फॉर्म में रहे, मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू यूटिलाइज ऑल द स्ट्रोक्स दैट ही इज गॉट, एंड ही वाज फिनोमिनल. इवन इन द पोस्ट मैच ही स्पोक अबाउट इट दैट दैट्स व्हाट द गोल वाज एंड वी मेड श्योर दैट वी गोइंग टू डिलीवर इट. तो उनसे पूछा भी गया कि यार अब आप अगले दिनों में क्या देखते हैं. उन्होंने कहा वी विल कंटिन्यू टू डू सो, सो नो मैटर व्हाट हैपेंस. Pakistan was slower on the pace in making runs, but we'll make sure that that we do it in a record time. तुमने जवाब दे दिया ना बीच में. हाँ. अब बता दो जब वापस आए. तो यही सवाल था, यही जवाब था. लेकिन अब शुएब भाई सवाल यहाँ पे एक और बनता है, क्या शान अभी तक, क्योंकि आज शान स्ट्रगल करते हुए नजर आए कि मैं शाहीन से गेंद कराऊं, फिर मैं अबरार को बीच में लेकर आऊं, फिर मैं नसीम से कराऊं, मैं आमिर से, कोई राइटफुल कॉम्बिनेशन शान आज नहीं बना सके. उसमें सऊद को भी लाए, साइन को भी लाए, फिर उसके बाद सलमान अली आगा को भी लेकर आए. वो राइटफुल कॉम्बिनेशन नहीं नजर आया बॉलिंग का. यार देखो, फास्ट बॉलर कैन ओनली बॉल अराउंड बट 20 ओवर्स, मैक्स 15. अगर अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तगड़े फास्ट बॉलर जो शाहीन शाह ने किया आज, तो अनफॉर्चुनेटली अबव 20 एंड बियॉन्ड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. आई मीन ही ओनली हैव ऑप्शंस ऑफ बिटवीन देम टू. सो ही इज लर्निंग एट द सेम टाइम. यार उसके पास एमिनेशन पूरा नहीं, लेट्स पुट इट दिस वे, एमिनेशन पूरा नहीं है. Had that Shaheen agar was firing, so it would have been much easier for Pakistan to get contain England. In terms of यार इनको शायद हम 350 कराते, 300 कराते, 330 कराते. But unfortunately, Shaheen wasn't up to the mark. Naseem was,
बट रेस्ट द बॉलर्स, आप इब्रार की बात करें, जमाल की बात करें, तो आप उनसे तो कंटेन करने से रहे ना. दिस इज व्हाट यू हैव. बट यू नो शाहीन ऑब्वियसली यार टेस्ट क्रिकेट बहुत लेट खेलता है, बहुत महीनों बाद खेलता है, तो इट्स बिकम्स डिफिकल्ट फॉर हिम एट द सेम टाइम बॉलिंग अबाउट यू नो क्या 19 ओवर्स. 19 ओवर का 19 ना, तो कल भी कराने हैं ना. हाँ. 10 तो कल भी कराने हैं, 29 हो जाएंगे. है. सही है. मिनिमम 10 तो और कराने हैं. नसीम को भी 10 कराने हैं, तो उसके कितने हो 3 से जाएंगे? 21 हुए. तो 31 हो जाएंगे. बिल्कुल. सो देखें सर, अगर आप 31 ओवर इन इनिंग्स करा रहे हैं तो लिटरली ये कोई 10 को T20 बन जाते हैं. ट्रू. लिटरली इन बिटवीन 2 ऑफ देम ये तकरीबन कोई 15 T20 बन जाते हैं. इतने का तो वो सीजन खेलते हैं. ट्रू. For them to ask to bowl like this, it's not easier as a fast bowler, but it's difficult for them. अगर वो कंटिन्यूसली क्रिकेट खेलते रहते, अगर वो साल के 18 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, 20 खेलते हैं, तो then I would expect them to run in and to bowl like this. But again, he's trying his best, and he's a good kid, and he's trying his best. But unfortunately, his pace is not there. His firing ability is not there. So, yeah. शहजाद, जहां हम बात करते हैं हमारी गेम की, यू स्पोक अबाउट शान मसूद एंड हिज प्लान विद द बॉलर्स. देयर वाज अ लैक ऑफ प्लान व्हिच वाज एविडेंट. कल जब सलमान अली आगा से पूछा गया, उन्होंने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी यही कहा कि जब मैं खेलने गया तो मुझे कोचिंग स्टाफ की तरफ से या कैप्टन की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई थी. आई जस्ट प्लेड विद माय ओन गट फीलिंग. तो इज देयर अ लैक ऑफ प्लान? इज देयर नो कम्युनिकेशन? सोलो चाहिए यहाँ पे. कोई कम्युनिकेशन नहीं नजर आ रही हमें. ड्रेसिंग रूम में कम्युनिकेशन नहीं है, कोचेस के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है. ये क्यों हमें इतने अरसे से ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन और एक हम गेमर है ना सारे. ये क्यों? व्हाई इज दिस गेमर हैं. हैपनिंग? जी शेर भाई. यार आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल है. तो अब मैं क्या कहूँ इस पे. मैक्सिमम मैं क्या कह सकता हूँ. यही है आपके सामने, जो है आपके सामने है, बस ऐसे ही है. हमें क्रिटिसाइज करके फायदा भी कोई नहीं, जी. और इनको कह के भी कोई फायदा नहीं. बट द थिंग इज देयर इज नो कम्युनिकेशन, देयर इज नथिंग. आई मीन लाइक व्हाट आर यू गोना से. आई मीन लाइक 100 कितने उन्होंने 492 कितना किया है? 142 ओवर में 492 142 ओवर्स में किया ना जी. 101 ओवर में. 101 सॉरी. तो 492 101 ओवर में किया था. 10 उन्होंने बता दी. 500 हमने स्कोर किया 100 ओवरों में. जी. 250 उन्होंने 50 और हमने 149 में किया. 50 ओवरों का फर्क है. वही नहीं यार, तुम्हारा वही सवाल था, तुम्हारा वही जवाब था, विच इज यार आप किस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हो और दुनिया किस तरह खेल रही है. इतनी आसान विकेट पे आप 100 बॉल एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हो. I mean, obviously, he's a young captain, he's a young team, he's a young coach. Again, I don't understand what to criticize. हाँ, मतलब किसको क्या कहें? किसको क्या कहें? क्या बस सब तो पता ही आपको. जो चल रहा है ऐसे चलने दे. बस इस तरह ही कह सकता हूँ. और कुछ देखने वालों को, जैसा कि माहीन है, हमारे जितने भी और चाहने वाले, क्रिकेट के चाहने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनको पता नहीं, कोई दिल में ना ऐसे जैसे कहते हैं. अब सबको दर्द होता है यार, मुझे भी तकलीफ होती है. बट थिंग इज, बच्चे हैं हमारे यार. लेकिन अब इन बच्चों को मैं क्या कहूँ. हमें जिस तरह वो ट्रेंड बेचारे हुए थे 5-10 साल में, वैसे वो डिस्प्ले कर रहे हैं. अब इनको मैं क्वेश्चन देना चाहूँ तो क्वेश्चन ऐसे दे सकता हूँ यार. आप टेस्ट मैच कितने देते हो इनको बेचारों को? कम खेलते हैं. क्या खेलते हैं? 8 टेस्ट मैच, 6-7 टेस्ट मैच 12 महीनों में. और फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे बिहेव कर जैसे उन्होंने साल के 25 टेस्ट मैच खेलते हैं या 22 टेस्ट मैच खेलते हैं. और अगर बाबर ने 100 टेस्ट मैच अभी तक नहीं खेले तो किसका कसूर है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ना यार. अजहर अली के नहीं 100 हुए. हाँ, एग्जैक्टली. तो आप टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं हो तो फिर कैसे बिहेव करेंगे? सो आई डोंट ब्लेम देम, आई डोंट क्रिटिसाइज देम, बट ठीक है जो है, दिस इज द बेस्ट यू हैव. ओके. And unfortunately, where we put all the blame on the pitch and the wicket, हमारे एक फॉरेन क्यूरेटर है, उनसे जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी देखें, विकेट उस तरह की है, we've put our maximum effort into it, it's literally like a bed of feathers under that top. Green top होगी, लेकिन उसको, he said there's nothing in the soil, this is the maximum that we can do. नहीं, लेकिन जो कॉमेंट्स बॉक्स से जो खबर आ रही थी, वो ये आ रही थी कि क्यूरेटर सेड कि every single day the pitch is going to change its behavior, but that's not happening. क्या हमें आज तक अपने होम ग्राउंड का बेनिफिट नहीं लेने आया, एडवांटेज नहीं लेना आया? हमने बांग्लादेश के खिलाफ 6 mm 9 mm घास छोड़ी, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ. इधर घास छोड़ी, वो अब इंग्लैंड हमें पीछे छोड़ने को लगा हुआ है. देखिए, घास छोड़ने से तो कुछ नहीं होता ना. नीचे क्या है सरफेस में, उसकी बात करें ना. वो तो रॉक सॉलिड. तो ऑब्वियसली अब उसकी प्रिपरेशन में अब कितना टाइम इन्वेस्ट हुआ मुझे नहीं पता इसका. वो हफ्ता पहले तैयार हुई है, 3 दिन पहले तैयार हुई है,
10 दिन पहले तैयार हुई, वो साल से पहले प्लानिंग होती है। ऑफ कोर्स यू नो द आंसर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने तेज़ विकेटें बनानी थी, हमने बना के दिखाई। एटिक्सन हमारे वो थे क्यूरेटर, तो उन्होंने विकेटें तेज़ बना के दिखाई, कोई मसला नहीं। बॉल कैरी भी कर रहा था, बेहतरीन जा रहा था और मुंह पे लग भी रहा था बॉल, तो कोई मसला नहीं। देखिए इंटेंट, तवज्जो है, ख्याल करना, तो थोड़ा सा ख्याल करना और इंटेंट शो करना, बस दैट्स इट। जिंदगी टोटल खेल इतना है, ट्रू, थोड़ा ख्याल करना और थोड़ा इंटेंट शो करना, बिल्कुल टोटल मंत्रा ये जिंदगी का यही है। मैं तो यही समझा हूं आज तक। तो इंटेंट इज देयर, और बैट्समैन ने क्या ख्याल करना, तो दिल लगा के काम करना और थोड़ा ख्याल करना। I don't think they're given enough time to curator to to prepare the wicket that what they're looking for. I don't blame the curator. No. But यहाँ मेरा छोटा सा एक Go और on. सवाल भी है। See, we've seen the wickets in Dubai and Sharjah. दुबई और शारजा के मुकाबले में मुल्तान तो इतना ड्राई नहीं होगा। If they have the resources to bring in the required soil to make those pitches, क्या पीसीबी के पास इतने resources नहीं है कि वो आके उस तरह की soil लेके आए, import करें और फिर अपने pitches पे काम करें? Madam, you're activating my cricketing brain now. These cities are on the coastline, Dubai and Abu Dhabi. Coastline से होता ही है कि शाम को ब्रीज चलती है, जिसे कहते हैं कि brings a dew factor, and रेगिस्तान की अपनी ड्यू होती है शाम के वक्त। ठीक है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, सितंबर अक्टूबर है, आप किस महीने में हैं, और आप अगर दिसंबर में हैं तो ड्यू फैक्टर वहाँ गिर जाता है। ड्यू फैक्टर का मसला ये है कि बेसिकली ग्राउंड जो है दुबई का वो सैंड के ऊपर है, जो विकेटें हैं वो रॉक सॉलिड है, राइट। और जब उसके ऊपर थोड़ी ड्यू गिरती है और जब वो मिट्टी, काली मिट्टी जुड़ना शुरू होती है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। राइट। जब वो इकट्ठा शुरू होते हैं उसके ऊपर हैवी रोल करें फर्स्ट इनिंग्स में, जैसे कप्तान मोस्टली मांगते हैं, तो वो अच्छा एक इवन बाउंस के साथ और ड्यू के साथ वो निप थ्रू करता है, स्किड थ्रू जिसे कहते हैं, ठीक है, Right. होता है। मुल्तान इज नॉट ऑन द कोस्ट लाइन, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। इट्स सच अ ड्राई लैंड जहाँ पे आपको तकरीबन आपको 25 से 30 दिन पहले विकेट तैयार करनी पड़ेगी, ओके। और उसको नर्चर करना पड़ेगा उस विकेट को, पानी दे रहे हैं, सब कर रहे ताकि वो पानी नहीं, रोल है, पानी है, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी का एक और लेयर्स हैं, फिर उसके बाद घास छोड़ना है, फिर कटाई है, कितनी कटाई है, कितनी छोड़नी है, इट्स अ होल लॉट ऑफ साइंस। तो ये आप 30 दिन पहले विकेट बनाते हैं, 26 घंटे पहले नहीं। राइट। और अगर आप मट्टी शायद बाहर से ले भी आएंगे मुल्तान में, अगर आप वो प्लेस करेंगे तो थोड़े से बाद जितना सेका पड़ेगा शायद उसका इम्पैक्ट वो ना रहे। अब एक और चीज कि भाई अब मुल्तान में कवर्स का भी बड़ा ताल्लुक है हाँ जी। इससे, कवर्स का भी बहुत ताल्लुक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अनकवर्ड विकेटों का भी बहुत ताल्लुक है। यार देखो ना, मुल्तान में कौन स्क्वायर कवर करेगा? 11 महीने का कवर, स्क्वायर कवर है, खुला पड़ा हुआ था, बिल्कुल तो अनट्रीटेड सॉइल है, तो जिसकी वजह से, बट द थिंग इज दे ट्राइंग देयर बेस्ट यार। लोग पाकिस्तान मैनेजमेंट एंड पाकिस्तान पीसीबी क्रिकेट बोर्ड ट्राइंग देयर बेस्ट। उन्हें घास छोड़ के शायद बॉल निप थ्रू करें और रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट हो। अब रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट ऐसी ही हो सकती है कि पाकिस्तान हैज टू बैट सो वेल, जो मैंने आपको कल भी कहा, बिल्कुल कि दे हैव टू सेव दिस गेम थ्रू द बैटिंग, एग्जैक्टली। दे हैव टू गो टुवर्ड्स द ड्रॉ नाउ। Okay, I think that's a big news. But very quickly, just to wrap this subject up as well. अगर हमें पता था कि हम मुल्तान में टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, हमने जब टीम सिलेक्शन की, अब मैं अक्रॉस फॉर्मेट लेके जा रहा हूँ बात को, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा मेरिट पे नहीं है, लेकिन मोहम्मद अली को हमने पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान में बहुत सारी विकेट्स लेते हुए देखा, अमंग्स हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे जब तक पीएसएल मुल्तान में हो रहा था। हमने मोहम्मद अली को अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंडी में। अगर मुल्तान में ही मैच हो रहा था, उन कंडीशंस के प्लेयर्स जो वहां खेलते हैं, उन ग्राउंड्स में खेलते हैं, उनकी सिलेक्शन रन ऑफ द मिल थिंग्स नहीं की जा सकती ना। रन ऑफ द मिल थिंग कैसे? अब आप उनके प्लान्स हैं, कप्तान के प्लान्स हैं, कोच के हैं, बोर्ड के हैं। आई थिंक इस तरह नहीं होता कि उन्होंने आउट किए थे खिला दें, पीएसएल में आउट किए तो खिला दें। इब्रार भी पीएसएल से निकला ना, तो खिला दिया आपने, उसको तो टेस्ट क्या हो गया? PSL is not, PSL is हमारे लिए not, मिस्ट्री बन गई। हाँ, PSL is not the merit। मेरिट ये होता है कि आप तकरीबन कोई 24 गेमें खेले हो, 30 गेमें खेले हो फर्स्ट क्लास के, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ क्या हिसाब किताब। 30 गेमें तो खेलो ना, 25 गेमें तो मैंडेटरी है ना। एग्जैक्टली। तो 25 के बाद मैं डिसाइड करूंगा यार कि आप में क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं आपको सिलेक्ट करूँ पाकिस्तान टीम में। ठीक है, और अभी जो चीज़ मेरा ख्याल है हमारे पास क्रीज पर मौजूद है,
वो हैरी ब्रुक है और जो रूट है, जरा हैरी ब्रुक की जाने पढ़ना चाहता हूँ, जो कि हमने मैच शुरू होने से पहले इनके हवाले से आपने अंदिया दी। बैटिंग डिड वेल। अब अगर नहीं है विकेट में कुछ भी तो बॉलर बेचारा क्या कर सकता है? आई मीन दिस लिटिल दैट ही कैन डू। अब इंटिमिडेट करने वाले नहीं है हमारे पास वही प्लेयर्स है, वही आर्मरी, हमने उसी को यूटिलाइज करना है। लेंथ यूज की ना नसीम शाह ने। नसीम ने बिल्कुल नसीम ने आज यूज की। लेंथ यूज की ना उसने, अंदर बाहर करता रहा ना। हाँ। बिल्कुल करता है। देखिए मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि अगर आप विकेट नहीं ले सकते रन तो रोक सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट, दैट्स व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज। ऑफ पे फील्ड लिया, ऑफ पे बॉल कराते जाए, ट्रिक करते रहे। बट एक जगह ऐसा लगा कि शायद गेम चेंज हो सकती थी। ऑब्वियसली आई डू नो फॉर अ फैक्ट कि बेनिफिट ऑफ डाउट बैटर को ही जाता है, लेकिन जिस कंडीशन में हमारे बॉलर्स थे, दिल से आवाज निकली कि यार ये हमें बेनिफिट होना चाहिए था। जरा मैं दिखाना शहजाद चाहता जो हूं। ये विकेट है इस पे तो बेनिफिट बॉलर को मिलना चाहिए था। है ना? ये देखे, वाह। वो कल आएंगे, कल लंच तक खेलेंगे और तेज खेलेंगे। वो कोशिश करेंगे 250 रन बनाएं। और फिर उसके बाद हम वो जैसे हमारा ऑलराउंडर कहता है लटायर, अपना छोड़ देंगे इनिंग्स और वो कोशिश करेंगे पाकिस्तान को 300 कराएं जो कोलैप्स होगा। और 300 में अगर 150 की रन की लीड हुई तो पाकिस्तान विल बी इन ट्रबल। वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर ऑनवर्ड्स लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप टुमारो। व्हिच टू टीम्स आर गोइंग टू कम टुगेदर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इज गोइंग टू बी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको कैसी लगी इसकी जो भी अपनी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो पहले जो टेस्ट का तीसरा दिन वो खेल आज आपने देखा और पाकिस्तान को बहुत मुश्किल में डाल दिया इंग्लैंड ने। जहाँ तक मुझे लग रहा था कि स्कोर अच्छा खासा बना है, लेकिन जो इंग्लैंड की बैटिंग है उसके बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप और उनके खेलने का जो अंदाज़ है इस वक्त बहुत ही धुआंधार और डेंजरस है। अब लगता यही है कि पाकिस्तान को अभी उन्होंने मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर पाकिस्तान नेक्स्ट इनिंग में कोई भी मिस्टेक करता है तो बहुत भारी पड़ने वाली है ये टीम। और इसके अलावा आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन्होंने जो जिस तरह की पिच यहाँ पर पाकिस्तान में बनाई गई है इंग्लैंड के लिए, तो कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो बहरहाल पाकिस्तान इस वक्त बज़ाहिर तो मुश्किल में नज़र आ रही है पाकिस्तान की टीम, क्योंकि इंग्लैंड का जो स्टार्ट है या जो उनके बैटिंग करने का अंदाज़ है अभी लगता है कि और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। और नेक्स्ट इनिंग में अगर पिच में 19-20 होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अपनी जो राय अपनी इज़हार ज़रूर किया करें।